وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ حاضرین جمعہ، اسلامی سوسائٹی کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے اسباب و عوامل میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو باہم مربوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مسلمانوں کے مابین اخوت و بھائی چارہ بڑے مضبوط انداز میں قائم کیا تھا۔ اخوت و بھائی چارہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ مدینے میں جو لوگ آباد تھے ان کے مابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وثیقہ، عہد و پیمان، دستور حیات مرتب کیا تھا۔ اس دستور حیات میں انسانوں کے بھائیوں کے باہمی حقوق، مسلمانوں کے باہمی حقوق اور مسلمانوں کے دیگر اقوام سے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو نمایاں اور اجاگر کیا گیا تھا۔ بھائی چارے کو اسلام نے اس قدر اہمیت دی اور اس قدر عام کیا ہے جس کی نظیر انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس بات کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصار کے مابین جو اخوت قائم کی تھی اور اس اخوت کو جن بندھنوں سے مضبوط کیا تھا، اخوت کو پارا پارا کرنے والے، بکھیر دینے والے جو اسباب ہو سکتے تھے ان تمام اسباب سے سوسائٹی کو محفوظ کر دیا تھا۔ آپ سبھی صحابہ کرام میں بڑا روشن نام سعد بن ربی اور عبد الرحمن بن عوف کا جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کے مابین جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس اخوت کے نتیجے میں ایک انصاری مسلمان کے ذہن و دماغ میں اپنے بھائی کے تئیں قربانی پیش کر دینے کا، ایثار کا جو جذبہ تھا، اس جذبے پر آپ غور کیجئے۔ لیکن اگر ایک بھائی کے دل میں ایثار و محبت اور اخوت کا ایک جذبہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے بھائی کے دل میں اس سے زیادہ جذبہ نہ ہو، بلکہ وہاں انصاری اور مہاجرین دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی ایمانی غیرت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر سعد بن ربی نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے اہل ہیں، ہم دونوں برابر برابر انصاف کے ساتھ ان تمام چیزوں کو تقسیم کر لیں، ظاہر روئے زمین پر ایسے ایثار کا جذبہ، ایسی فدائیت کا اور قربانی پیش کرنے کا جذبہ موجود نہیں تھا۔ لیکن اس ایثار کا جواب مہاجر انصاری نے اپنے لفظوں میں دیا، شکر اللہ سعیک دلنی علی سوق لأتاجر فیہ۔ اللہ رب العالمین تمہاری اس قربانی کو قبول کرے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ تاکہ میں تجارت کے ذریعے اپنے آپ کو پروان چڑھا سکوں، اپنے آپ کو ترقی دے سکوں۔ دونوں بھائیوں میں گویا اخوت کو برقرار رکھنے کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں انہیں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی اخوت کی بنیاد پر مہاجر کو انصاری کا وارث قرار دیا تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اللہ کے رسول وہ بیان کرتے ہیں
लम्मा कदिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना यरिसु अल मुहाजिरी अल अंसारिया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मुहाजिर अंसारी का वारिस हुआ करता था, और ये वरासत का निजाम गज़वे बद्र तक कायम था। और इस वरासत में इस बात को भी मलहूज रखा गया था कि खानदानी जो रिश्ता होता है, ज़वी रहम और कराबत का जो तकादा होता है, उस तकादे से हटकर महज अंसारी का वारिस मुहाजिर बनाया जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गज़वे बद्र के बाद इस वरासत के निजाम को सिर्फ खत्म किया, लेकिन उखुवत और भाईचारा का जो निजाम इस्लाम ने पेश किया, रहती दुनिया तक उसे आबाद रखा गया। आप सभी जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान किया, व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबाद फी किताबिल्लाह। उलुल अरहाम आपसी रिश्ते के लोग एक दूसरे के वारिस होंगे खानदानी रिश्ते में बंधने की वजह से। यहां हमारे गौर करने का मुकाम यह है कि इस्लाम ने उखुवत को जिंदा किया ताकि सोसाइटी के लोग बाहम एक दूसरे से मरबूत होकर मुख्तलिफ चेहरे होंगे लेकिन सब एक जिस्म के मानंद बन जाएंगे। अगर आप ईमानी उखुवत पर गौर करें तो ईमानी उखुवत की फजीलत में 2-3 बातें खास तौर पे आपके सामने पेश करना मुनासिब समझता हूं। पहली बात तो यह है कि इस्लामी उखुवत ईमान के मुस्तलजमात और उसके मुकव्वमात में से है। इस बात की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान जो सूरह हुजरात में है, इन्नमल मुमिनून इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन तो आपस में एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन भाइयों के माबैन तुम सुलह कराने की कोशिश करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मालूम यह हुआ इब्न कसीर के कौल के मुताबिक कि मोमिन सिर्फ और सिर्फ ईमानी उखुवत के रिश्ते और बंधन में बंधे हुए हैं। इसी बात को मुसलमानों की तारीख ने साबित किया। जब मुसलमानों की सोसाइटी में दुनिया के तमाम खित्तों में बसने वाले इंसानों के बारे में बरमला ऐलान होता था कि अगर दुनिया के तमाम खित्तों में बसने वाले मुसलमान को कोई चीज मरबूत कर सकती है, मुत्तहिद कर सकती है, तो उनकी सबसे बड़ी नेशनलिटी और जिंसिया इस्लाम की मानी जाएगी। कौमियत की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर, इलाकायत की बुनियाद पर दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं है। और अगर वजह इत्तिहाद, नुक्ते इत्तिकाज मुसलमानों की जिंदगी में कोई चीज बन सकता है तो हमारा इस्लाम और हमारा ईमान है। इसी ईमान और इस्लाम के बारे में अगर आप गौर करें तो ईमानी उखुवत या मुसलमानों का आपसी भाईचारा ईमान के शोबों में से एक बुलंद शोबा है। और इसी भाईचारा के बारे में अगर आप गौर करें तो इसकी तीसरी फजीलत यह है कि अगर हमारे दरमियान इस्लामी बुनियादों पर भाईचारा कायम हो जाए तो यह भाईचारा इस बात का सबब बन जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे या उसके साये में हमें साया मिलेगा। सुनन तिरमिज़ी की मशहूर हदीस जिसे आपने बारहा समाप्त किया होगा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खुशनसीब अफराद के बारे में इस बात की बशारत दी कि वो लोग रब्बुल आलमीन के साये में जगह पाएंगे जब अल्लाह के साये के अलावा कोई और साया ना होगा। उन 7 नेकबख्त इंसानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्म को शुमार करते हुए कहा था, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि वफ्तरका अलैहि। 2 आदमी जिन्होंने आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए की हो, अल्लाह ही की खातिर वो दोनों जमा हुए हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की खातिर वो दोनों एक दूसरे से अलग और जुदा हुए हों। तो जरा आप गौर कीजिए, अगर हमारी आपस में मोहब्बत अल्लाह की खातिर हो जाए, हमारा इज्तिमा अल्लाह के लिए हो जाए और हमारा इफ्तिराक और हमारी जुदाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो जाए, तो ये वो क़ुव्वत, ये भाईचारा इस बात की हमें जमानत दे देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साये में हमें जगह मिलेगी जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया ना होगा। इस्लामी भाइयों, इसी उखुवत के बारे में अगर आप गौर करें, उमर इब्न अल-खत्ताब ने कितनी वाज़ेह बात किया था कि इंसान की जिंदगी में सबसे आदीम सरमाया, सबसे बड़ी दौलत और सबसे कीमती माल अगर कोई हो सकता है, उनके कौल में उन्होंने कहा था, मा उतिया अहदुन
फिल इस्लाम खैरन मिन अखिन सालिहिन फैदा रा अहदुकुम उद्दम मिन अखीहि फलितमस्सक बिही। कोई भी इंसान इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे बड़ी दौलत उसकी या सबसे आदि नेमत जो उसको हासिल होती है वो सालिह भाई है, अच्छा भाई है, हमदर्द खैरखा भाई है। लिहाजा जब भी तुम में से कोई इंसान अपने भाई की जिंदगी में मोहब्बत को महसूस करे तो उसे मजबूती के साथ थाम ले, उस भाईचारा को बाकी रखने की कोशिश करे। यह उमर बिन खत्ताब का कौल है। और अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो मालिक इब्ने दीनार के कौल पे आप गौर कीजिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस बात का ऐलान कर दिया, सलासुन मा बक़िया मिन मताए दुनिया इल्ला सलास, दुनिया के साजो सामान में से या दुनिया की नेमतों में से, क्योंकि इसके दो अल्फाज हैं, मा बक़िया मिन मताए दुनिया और मा बक़िया मिन नेमत दुनिया। दुनिया की नेमतों में से या दुनिया के मता में से तीन चीजें बाकी रह गई हैं। पहली बात लिक़ाउल इख़वान, भाइयों का आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, और दूसरी बात वह तहज्जुद बिल कुरान, कुरान करीम के जरिए तहज्जुद का एहतिमाम करना। और तीसरी नेमत के बारे में मालिक इब्ने दीनार ने अपने अल्फाज में कहा, वो बैतुन खालिन युज़करुल्लाहु फीही, ऐसा खाली घर, ऐसा खलवत का घर जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाए। ये तीन नेमतें इस्लाम की आदीम तरीन नेमतें हैं जिन नेमतों की हमें कद्र करना चाहिए। मालूम यह हुआ इस्लामी भाईचारा अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक बड़ा अदीम भाईचारा है, बड़ी अदीम नेमत और दौलत है। इसी दौलत के बारे में अगर आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस बात को बयान कर दिया कि अगर कोई इंसान खुलूस दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर अपने भाई से मुलाकात करने के लिए दूर दराज का सफर करे तो ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुना दी कि वो इंसान जन्नती इंसान है। क्योंकि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला उखबिरुकुम अन रिजाल अहलिल जन्ना, क्या मैं तुम्हें जन्नती मर्दों के बारे में ना बता दूं। जरा आप गौर कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आदीम उसलूब पर। आपने कहा मुतवज्जे करने के अंदाज में, क्या मैं तुम्हें उन मर्दों के बारे में ना खबर दूं जो जन्नती हैं। साहब किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर आप खबर दीजिए। तो आपने बयान करते हुए नौ सिफात के रिजाल को आपने शुमार किया था। उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अन्नबिय्यु फिल जन्ना व शहीद फिल जन्ना व सिद्दीक फिल जन्ना, नबी जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में होगा, सिद्दीक जन्नत में होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों की फेहरिस्त में एक ऐसे इंसान का शुमार करते हुए कहा था, वो रजुलुन ज़ारा अखाहु फी नाहियति मिस्र फिल जन्ना, ऐसा इंसान जो दूर दराज शहर के किसी इलाके में या गांव के किसी इलाके में अपने भाई की ज़ियारत करने के लिए जाता है, ऐसा इंसान भी जन्नती होगा। मुसलमानों, अजीज तलबा, हमारे और आपके गौर करने का मुकाम यह है कि जन्नत में दाखिल करने वाली सिफात में बड़ी आसान मामूली सिफत, जिस सिफत को अंजाम देना या उससे मुत्तसिफ करना अपने आप को बड़ा आसान है, वो बात यह है कि आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ अपने भाई की ज़ियारत के लिए बगैर किसी मकसद और मफाद के उसकी ज़ियारत करने के लिए जाएं। ये जन्नत में दाखिल करने का बहुत बड़ा सबब बनता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह अपने एक और हदीस में कामयाब इंसानों के बारे में अच्छे आमाल की खबर देते हुए 8 आमाल को बुनियादी तौर पर आपने शुमार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अव अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफअहुम लहुम, सबसे पसंदीदा और महबूब इंसान लोगों में वो इंसान माना जाएगा जो लोगों के लिए ज्यादा नफा बख्श हो। जरा आप गौर कीजिए, हम में से वो इंसान अल्लाह की नजर में लोगों में ज्यादा पसंदीदा है जो लोगों के लिए ज्यादा नफा बख्श हो, जो लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता हो, लोगों की जरूरियात में हाथ बटाता हो, लोगों के काम आता हो। और फिर शख्सियत के बयान के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वा अहब्बुल आमाल इलल्लाहि सुरूरुन तुदखिलु फी क़ल्बि मुस्लिम औ फी क़ल्बि अखीकल मुस्लिम, सबसे पसंदीदा अमल अल्लाह की नजर में वो अमल है
कि खुशी अपने मुसलमान भाई के दिल में दाखिल करने की तुम कोशिश करो। जरा गौर करो, आप अपने भाई के दिल में अगर खुशी दाखिल करने की कोशिश करते हो तो ऐसे अमल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन अमल करार दिया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औ तक़दी अन्हु दैना, तुम उसके कर्ज की अदायगी का सामान पैदा करो, औ तुफ़र्रिजु अन्हु कुर्बा, या फिर तुम उसकी किसी मुश्किल और परेशानी का इज़ाला करने की कोशिश करो। इसी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन आमाल की फहरिस्त में इस बात को शुमार किया कि मैं किसी भाई के माबैन सुलह कराने के लिए तगोदो करूं, कोशिश करूं। ये बात मेरे लिए इस बात से ज्यादा पसंदीदा और महबूब है कि मैं मस्जिद में 1 महीने का एतिकाफ करूं। जरा गौर कीजिए, 2 भाइयों के माबैन सुलह कराने की कोशिश में तगोदो करने वाला इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 1 माह एतिकाफ करने से बेहतर अमल इख्तियार करने वाला इंसान बन जाता है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं अमाल के ज़िम्ने में उखुवत और भाईचारा से मुताल्लिक जो बात पेश की है, उसी बात को मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन मशा फी हादति अखीही हत्ता असबतहा औ हत्ता युस्बितहा असबतल्लाहु क़दमहु यौम तज़िल्लुल अक़दाम। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की जरूरत के तहत उसके काम की तकमील के लिए, उसकी मदद के लिए उसके साथ जाए, यहां तक कि उसके काम की तकमील कर दे, ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, उसको यह अजीम फायदा मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कदम को साबित कदम रखेगा। ऐसे दिन जब इंसानों के कदम साबित कदम नहीं हो सकेंगे, जब इंसानों के कदम फिसल जाएंगे। मालूम यह हुआ कि अगर कोई इंसान कयामत के रोज अपने कदमों की सबात चाहता हो, अगर वो चाहता कि उसका पैर जम जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के हौलनाकी और सख्तियों से उसको बचा ले, तो ऐसे इंसान को अपने भाइयों की जरूरियात की तकमील के लिए अपने दिल में जगह रखनी चाहिए और उसके लिए तगोदो, कोशिश, जिद्दोजहद, मेहनत और अमल करने की जरूरत है। ये इस्लामी भाईचारा है और इसके फवाइद हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अंदाज में अपनी अहादीस में बयान किया है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी ये उखुवत, हमारा ये भाईचारा, मुसलमानों के लिए हमदर्दी और उनकी मदद करने का जज्बा अगर हमारे दिलों में मौजूद हो तो किन बुनियादों पर होना चाहिए? इस बात को मैंने आपके सामने पेश किया इख्तिसार के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर इस अमल को अंजाम दिया जाए और किसी इंसान की मदद इसलिए की जाए कि वो इंसान ईमान पर गामजन है, वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बंदा है, वो इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मुत्तबे और आपकी सुन्नत का हरीस है। हाँ, अगर वो इंसान सुन्नत का मुत्तबे नहीं, तौहीद पर गामजन नहीं, तो ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत और दोस्ती कायम करना, भाईचारा कायम करना, इस्लाम में भाईचारा का जो माना और मफहूम होता है उसे इत्तिबार से, ये बात हमारे लिए काबिल तवज्जो है। और आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हदीस सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना आला बनी फुलान लैसू बिअौलिया इन्नमा वली अल्लाहु सालिहुल मुमिनीन। याद रखो, आले बनी फुलान के आल मेरे औलिया और दोस्त नहीं हो सकते हैं, मेरा वली और दोस्त तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और मोमिनों में सालेह लोग होंगे। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान करते हुए कहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फल अल इंसान वाला दीन खलीली और युहशरुल मर वाला दीन खलीली फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। तुम में से कोई शख्स या तुम में से हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर उठाया जाएगा, लिहाजा हर शख्स को गौर करना चाहिए कि उसकी दोस्ती किन लोगों से है, उसकी बैठक किन लोगों के साथ है, उसकी नशिस्त बर्खास्त कैसे इंसानों के साथ है। लिहाजा मुसलमानों, हमें गौर करना चाहिए कि हमारी नशिस्त बर्खास्त, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना ऐसे लोगों के साथ हो जो यकीनी तौर पर सलाहियत से मुत्तसिफ हों, जिनके अंदर इस्लाह का जज्बा हो। सलाहियत और इस्लाह ये दोनों आमाल इंसानों की जिंदगी में बेहद जरूरी हैं और उन्हीं दोनों आमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बुलंदी देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दोस्तों के बारे में, वो बुरे हो या दोस्त या बुरे हो या अच्छे, उन दोनों दोस्तों का असर इंसानी जिंदगी पर बहरहाल नुमाया होता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में अपने हदीस में बयान किया, ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन वला याकुल ताअमक इल्ला तगी, दोस्ती सिर्फ मोमिन से करो, दस्तरखान की जीनत अच्छा मुत्तकी परहेजगार और सालेह इंसान बने। यह हदीस बड़ा अदीम दर्स हमें देती है कि हम जब भी किसी को अपना मुसाहिब बनाना चाहें, अपना दोस्त और साथी बनाना चाहें, तो हमें अच्छे लोगों का इंतखाब करना होगा, मुत्तकी इंसानों का इंतखाब करना होगा, क्योंकि अच्छाई या बुराई का असर इंसानी जिंदगी पर, उसके दिलो दिमाग पर, उसके देहनो कुव्वत पर बहरहाल मुरत्तब होता है, जिसको सुनन तिरमिज़ी की रवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हुए कहा था, मसलुल जलीस सालिह वस्सू कहामिल मिस्क व नाफिखिल कीर, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल खुशबू बेचने वाले और भट्टी फूकने वाले इंसान की तरह से है। आपने खुशबू बेचने वाले इंसान के बारे में तीन चीजों को बयान करते हुए कहा था, अम्मा हामिलुल मिस्की फइम्मा युहदियक व इम्मा तबता मिनहु व इम्मा तजिद रिहन तय्यिबा। खुशबू बेचने वाला इंसान या तो तुम्हें कुछ अता कर देगा, या तो तुम कुछ खरीद लोगे, या कम अज कम तुम्हें अच्छी महक और अच्छी खुशबू मिलेगी। लेकिन भट्टी फूकने वाले इंसान की मिसाल बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इम्मा युहरिक सियाबक, या तो कोई चिंगारी उड़ेगी तुम्हारे कपड़े को जला देगी, या फिर व इम्मा तजिदा मिनहु रिहन नतिना, या तुम्हें बुरी महक से, धुआं से ताफुन पैदा होगा, घुटन महसूस होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन और बलीग तशबीह है, जिस तशबीह पर खुसूसन तलबा को गौर करना चाहिए कि फैसला हमें करना है कि हम किस तरह के इंसानों की सोहबत इख्तियार करते हैं और कैसे इंसानों को अपना दोस्त बनाते हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, इस्लाम ने उखुवत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे उमूर की रहनुमाई की है। उन उमूर पर अमल पैरा होना आपसी उखुवत को बरकरार रखेगा, उसमें पायदारी पैदा करेगा। लेकिन अगर उन उमूर को हमने अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश न की तो हम चीखो पुकार के जरिए, हंगामाराई के जरिए भाइयों के माबेन, मुसलमानों के माबेन उखुवत और भाईचारा कायम करने पर कादिर नहीं हो सकेंगे। इख्तिसार के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस्लामी उखुवत के बंधन को मजबूत कर देने वाले उमूर और मसाइल में से पहला अम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान, और दूसरा अम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मुताबात, और तीसरा अमल मुसलमानों के तई, अपने भाइयों के तई ईसार और कुर्बानी का जज्बा। अपने नफ्स को भाई पर तरजीह मत देने की कोशिश करो, बल्कि भाई को, भाई के तकादों को, भाई की मसलहत को, भाई की जरूरियात को अपनी जरूरियात पर मुकद्दम करने की कोशिश करो, जिसे आपकी जुबान में कहते हैं देने के लिए अपने आप को तैयार रखो, लेने का जज्बा सर्द करने की कोशिश करो। आज मफाद परस्ती के दौर में हर इंसान हासिल करने की तो कोशिश करता है, लेकिन देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखता। यही वजह है कि हमारी उखुवत और हमारा भाईचारा जिस अंदाज में पैदा होना चाहिए वो बरकरार नहीं रह पाता है। तो बहरहाल मैं कहना यह चाहता था कि देने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो और लेने से बचने की कोशिश करो। अपनी गैरत को बेदार रखो, अपनी खुददारी को पहचानो और लोगों को इस बात का दर्ज दो कि हम भाइयों के मसाले को अपने मसाले पर मुकद्दम करने वाले इंसान हैं, क्योंकि हमें ईसार का जज्बा इस्लामी तालीमात की रोशनी में आता हुआ है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको अपना कर इंसान लाजमी तौर पे अपने भाई की नजर में महबूब हो सकता है। और इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान में रहनी चाहिए, वो बात यह है कि अपने भाइयों का मजाक उड़ाने से, उनका शुक्रिया करने से, उनकी तौहीन करने से, बुरे अलकाब से उनको याद करने से गुरेज किया जाए, ऐसे नामों से याद किया जाए जिन नामों को याद करने से उसको खुशी हो, वो जिन नामों को महबूब रखता हो। ये तमाम की तमाम चीजें हमारा जुबानी अमल है, जिस अमल की हम अहमियत को नहीं समझते, हालांकि यही जुबानी अमल भाई से, भाई के दिल में नफरत पैदा कर देता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अच्छे नामों से याद करने के साथ साथ ये भी इस्लामी तालीमात का तकादा है कि पीठ पीछे गायबाना तौर पर अपने भाई को दुआ दीजिए, और इस दुआ का फायदा खुद अपनी जात को आपको मिलेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में इस बात को बयान कर दिया गया, दावतुल अखी ली अखी फी ज़हरिल गैब मुस्तजाबतुन, किसी भाई का अपने भाई के लिए पीठ पीछे गैर हाजिरी में दुआ देना, उसकी दुआ मकबूल होती है। और जब वो इंसान अपने भाई के लिए गायबाना तौर पे दुआ देता है तो उसी के साथ
एक फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहते हुए कहता है वला का मिथलो, तुम्हें भी उसी के मित्र फायदा मिले। तो अगर आपने अपने भाई को गायबाना तौर पे दुआ दी तो फरिश्ता आपकी दुआ पर आमीन कहते हुए तुम्हारे लिए दुआ देगा। इससे बड़ी फजीलत और अजीमत की बात क्या हो सकती है कि आप अपने भाई के लिए गायबाना तौर पे दुआ दो और फरिश्ता आपकी दुआ पर आमीन कहते हुए आपके लिए दुआ दे। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें इस बात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इस्लाम ने उखुवत को, भाईचारा को, आपसी मेल मिलाप को, आपसी मोहब्बत को इस तरह मरबूत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इस सिलसिले में बहुत सारी मिसालें पेश करते हुए अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु मन कान फी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फी हाजतिही। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लिहाजा भाई अपने भाई को बेयारो मददगार ना छोड़े, उस पर जुल्म ना करे, उसको बेसहारा ना बनाए, और जो शख्स अपने भाई की मदद के लिए तवज्जो करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, जिन अहादीस को बयान करने का वक्त नहीं, चूंकि वक्त मेरा पूरा हुआ इसलिए आखिरी हदीस आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह मैं खुतबे को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। साल बिन साइद उसके रावी हैं और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी उसके रावी हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी किसी चीज का कोई सवाल होता था तो आप मना नहीं करते थे, आपकी जुबान से ला नहीं निकलता था। मा सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाला इल्ला मा क़ाला अल्लाह या इल्ला वलम यकुल्ला। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज के बारे में सवाल किया गया तो आपने ना नहीं कहा। इस सिलसिले में गौर करने की बात जो साल इब्न साइद के हदीस में पेश की गई है वो बात यह है, जात इमरातुन बिबुरदा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आपके लिए एक चादर तैयार करके लाई। सहाबा किराम में बाद लोगों ने कहा तुम जानते हो क्या है? बा सहाबा ने कहा शमलतुन मंसूजा फी हाशियतिहा, एक बेहतरीन किस्म की चादर है जिसके हाशिये में बुनावट है, जिसका किनारा जरी किया हुआ आपके लफ्ज में कह सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस खातून ने कहा मैं आपकी रिलाई हूं ताकि आप उसे इस्तेमाल कीजिए। हदीस के अल्फाज के मुताबिक लबिसहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहताजन इलैहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जरूरत के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ओढ़ लिया, उसको पहन लिया, आपको उसकी जरूरत थी। एक सहाबी ने देखा, उस चादर की तारीफ किया और तारीफ करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं उक सुनी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ये चादर दे दीजिए, मुझे आप ओढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाम, ठीक है। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले या उठे, सहाबे किराम ने उस सहाबी को मलामत करना शुरू किया, कहा तुम नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना बुलंद और आली है कि आपसे जब भी किसी चीज का सवाल किया जाता है तो आप उसको पूरा करते हैं, तुमने नबी से क्यों मांग लिया जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी जरूरत थी? तो सहाबी ने कहा मैंने आपसे इसलिए मुतालबा कर लिया ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी बरकत मुझे हासिल हो जाए और शायद मुझे इसी चादर में दफन कर दिया जाए। ये जज्बा था एक सहाबी के दिल में। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमत पे आप गौर कीजिए, जरूरत के तहत जो चादर आपको अता की गई थी, हिबा की गई थी, किसी आम इंसान ने उसका मुतालबा और सवाल कर लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उसे अता कर दी। अगर हमारे अंदर भी अता का ये जज्बा पैदा हो जाए, इन्फाक की ये कैफियत बेदार हो जाए तो यकीनी तौर पर लोगों की नजरों में हम महबूब बन जाएंगे और हमारा आपसी भाईचारा या उखुवत